गुजरात के भावनगर शहर में एक नवजात शिशु मिलने का मामला सामने आया है। भावनगर के डीमार्ट के पास एक नवजात शिशु मिलने का मामला सामने आया। घटना सुबह की है, जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में पड़ा मिला। तुरंत 108 एम्बुलेंस और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शिशु को तत्काल सरटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। हमने सन 58 कॉल મળ્યો આ રીતે બાળક બેભાન છે ડીમાર્ટની પાછળની સાઈડમાં શિવ અમૃતધારા સામે ત્યાંથી અમે બાળકના જેવું મળ્યો કે ભાઈ થોડુંક જીવ છે એટલે તરત જ તે સરટી હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા સારવાર માટે. આપણે જે ઓલું વસંત વિહાર છે એની પાછળ શિવ અમૃત સોસાયટીની ઉहाँ જે સિમેન્ટના રોડ છે ને ત્યાં હાલવા જતો હતો. સવારે 6:30 મને બાળક રડવાનો અવાજ આવ્યો એટલે મેં ઘડીક નક્કી કર્યું કે પાકવા છે જ તેને બાળકનો જ અવાજ. પછી મને તો એવું પાકું ન થયું. તે કરિયાણા દુકાન છે હું હળી કાઢીને ગયો અને મેં કીધું એને કે ભાઈ આ બાળક રડવાનો અવાજ આવે છે, હાલને જરાક. એ મોટરસાઇકલ લઈને આવ્યો ને એની મોટરસાઇકલની લાઇટથી એમ જોયું તો મને કે દરબાર આ તો આમાં સાચું કે બાળક જ ટીંગાય છે એમ. બરાબર એટલું જોયું. ત્યાં પછી હું કોઈક લેડીઝને કીધું બોલે એવું કાંઈક આવડું આ છોકરાનું કાંઈક જોલું થાય તો એમ. બરાબર હું ઘરે ગયો ત્યાં એવડે ભાઈ કોઈક આને ફોન કરી દીધો. મારી પહેલાં એક ભાઈ સાંભળેલો અવાજ પણ એ કે મીંદડાનો અવાજ છે એમ. गुजरात के वडोदरा में हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस का रोड सेफ्टी अभियान चलाया गया। वडोदरा शहर के हाईवे पर आज शहर ट्रैफिक पुलिस और गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। नेशनल हाईवे 48 स्थित सयाजीपुरा विश्राम गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में लेन डिसिप्लिन फॉर सेफ्टी अभियान को बढ़ावा दिया गया। सरकार की नई योजनाओं के तहत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों को गोल्डन आवर यानी पहले घंटे में अस्पताल पहुंचाने की महत्वपूर्णता पर जानकारी दी गई। इसके अलावा शराब पीकर ट्रक या बस ना चलाने, सुरक्षा लेन में वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया गया। मार्ग सलामती मास 2025 ના ભાગરૂપે વડોદરા શહેર પોલીસ માર્ગ સુરક્ષા અંગેની કેટલાક કાર્યક્રમોની આયોજન કરી છે અને આના ભાગરૂપે આજે વડોદરા શહેરના જ્યુરિસ્ડિક્શનમાંથી પસાર થતી 45 કિલોમીટર લાંબી નેશનલ હાઈવે અને 10 કિલોમીટર લાંબો નેશનલ એક્સપ્રેસવે ઉપર ચાલતા ભારે વાહનો લેન ડિસિપ્લિનનું પાલન કરે તો વાહન અકસ્માતો બનતા અટકાવી શકે આ દિશામાં આજે એક પ્રયાસ કરી છે. તો દરેક ભારે વાહનના ડ્રાઈવર સાથે સાથે અન્ય વાહન ચાલકો લેન ડિસિપ્લિનનું ચુસ્તપણે પાલન કરતા થાય તો આવા અકસ્માતો સર્જાતા આપણે અટકાવી શકીએ. તે માટે આજથી વડોદરા શહેર પોલીસ આજુબાજુના શહેર જિલ્લાઓ સાથે સંકલન કરીને એક અભિયાન શરૂ કરી છે. જેમાં ટ્રક ડ્રાઈવરો અને ભારે વાહનના ચાલકોને એક જનજાગૃતિ કરીને લેન ડિસિપ્લિનનું પાલન કરે, પોતપોતાના લેનમાં ચાલે તો ઓવરટેકિંગ વખતે કે નોર્મલ મૂવમેન્ટ વખતે અકસ્માત ના સર્જે અને આપણા રોડ સેફ રોડ બને આ માટે આપણા પ્રયત્ન કરી છે. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वडोदरा में होने वाले इंटरनेशनल मास्टर लीग के लिए अंतिम 2 टीमें वडोदरा पहुंची। इंटरनेशनल मास्टर लीग की अंतिम 2 टीमें वडोदरा पहुंच चुकी है। इस लीग के तहत 28 फरवरी से 7 मार्च तक कुल 6 मुकाबले कोटंबी स्टेडियम में खेले जाएंगे। आज वडोदरा एयरपोर्ट पर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे। खासकर क्रिकेट के लेजेंड क्रिस गेल के आगमन को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह था। लेकिन जब क्रिस गेल वडोदरा एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो क्रिकेट प्रेमियों में निराशा देखने को मिली। गुजरात के वडोदरा के गोत्री तालाब में युवक का शव मिला है। गुजरात के वडोदरा में गोत्री तालाब से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय मनोज भाई के रूप में हुई है, जो बीते 4 दिनों से लापता थे। शव डिकम्पोज्ड अवस्था में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वडोदरा के हरिकृपा पुरानी RTO के पास रहने वाले मनोज भाई लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। जानकारी के मुताबिक वह गोत्री तालाब मछली पकड़ने गए थे। उसी दौरान डूबने की वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड और गोत्री पुलिस की टीम भी पहुंची। सेकंड PI ने घटना स्थल का मुआयना किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा में अनोखे फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं होता, बल्कि समानता का संदेश देने के लिए भी हो सकता है। इसी अनोखे प्रयास के साथ में शहर के कारेली बाग स्थित स्पंदन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज द्वारा मनोदिव्यांग बच्चों के लिए सांस्कृतिक स्टोरियल 2 अंतर्गत फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के 6 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष तक के 29 मनोदिव्यांगों ने शहर के जाने माने 10 फैशन डिजाइनर और प्रोफेशनल मॉडल के साथ रैंप वॉक किया, जिसमें रैंप पर उनके टैलेंट और आत्मविश्वास की झलक दिखाई दी। फैशन शो में शहर के नामचीन फैशन डिजाइनर चंद्रेश नाथानी, बिन्नी पटेल, सोनम काबरा, तेजल पटेल ने मनोदिव्यांग और मॉडल के ड्रेस डिजाइन किए थे, जिसकी कोरियोग्राफी राहुल और मानस शर्मा ने की थी। रैंप पर बच्चों के लिए एथनिक, वेस्टर्न, ट्रेडिशनल ड्रेस में रैंप वॉक आयोजित किया गया था। इस इवेंट में वडोदरा सांसद
डॉक्टर हिमांग जोशी, बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लता गुप्ता, मेकअप आर्टिस्ट पारुल शाह सहित अन्य गणमान्य और उद्योगपति तथा सेलिब्रिटीज ने मनोदिव्यांगों के साथ रैंप वॉक किया। इस फैशन शो के पीछे मुख्य उद्देश्य मनोदिव्यांग बच्चों को समाज के साथ जोड़ने और फैशन इंडस्ट्री में उनकी क्षमताओं को स्थापित करना था। आज स्पंदन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज द्वारा ये दिव्यांग बच्चों के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया। बड़ौदा के 4 लीडिंग फैशन डिजाइनर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये बच्चों के ड्रेसेस बनाए हैं। ये प्रोग्राम करने के पीछे हमारा हेतु ये है कि ये बच्चे भी नॉर्मल आदमी की तरह रैंप वॉक कर सकते हैं, तो हमको समाज को दिखाना है और इनको समाज का एक हिस्सा बनाना है, इसीलिए हमने ये शो का आयोजन किया है।